30 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذوالفقار قاسم کی لکھی ہوئی کتاب ازواج مطہرات و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ سوالن جواباً انداز میں لکھی گئی ہے، اور اس میں 200 پلس صحابیات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا جن کو ہم جانیں گے۔ بعض ایسے نام ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے، تو ایک کوشش ہے کہ ہم اپنی صحابیات کو بھی جانیں۔ جہاں ہم اتنے صحابیوں کو جانتے ہیں تو صحابیات کو بھی، ان کا بھی کیا رول تھا، وہ کیسے ساتھ دیتی تھیں، کیسے انہی صحابیوں کو آ، پشت پناہی کرتی تھی، کیسے ان کو سپورٹ کرتی تھی، سب چیزوں کا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم صل على محمد وعلى ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں ابھی تک پڑھے تھے، انہی کے سلسلہ چل رہا ہے اس میں، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر سیکنڈ لاسٹ جو سا ہے کہ بتائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلے خاوندوں سے کتنی اولادیں ہوئیں۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے جانا کہ ان کے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہوئے ہی ہوئے، لیکن ان سے پہلے بھی ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور ان میں سے بھی بچے تھے آپ کی نا۔ تو عتیق بن آیت مخزومی جن کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ بنو تمیم کے ابو خالہ ہند بن نباش تمیمی سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، ہند، حالہ اور طاہر۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ عتیق بن آیت سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ تو ایک یہ لڑکا، تینوں لڑکے تھے، ہند، حالہ اور طاہر، اور لڑکی ایک تھی اس کا نام بھی ہند تھا۔ دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا؟ جی عتیق ابو مالا کی وفات کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان سرداروں میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ بن ابی معیط، سلط بن ابی یحاب وغیرہ شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیک نامی، فہم و فراست اور کردار کی بلندی کی وجہ سے بھی سرداران قریش ان سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری شادی کس سے ہوئی؟ اکثر مؤخرین کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ کی 2 ہی شادیاں ہوئی تھیں، تاہم بعض مؤخرین کہتے ہیں کہ سیدہ کی تیسری شادی بھی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا تیسرا نکاح ان کے چچا زاد سیفی بن امیہ سے ہوا، تاہم اکثر روایات میں ہے کہ پہلی 2 ہی شادیاں ہوئیں۔ تیسرا نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور معتبر سیرت نگاروں کا اسی پر اتفاق ہے۔ اب جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو یہ جانتی تھیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالی جب انہوں نے بھیجا تھا نا ان کو، میسرا کو، اپنے غلام کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، شام جائیں اور جا کے پوری تجارت کو اور ہر ایک کی ان کی حرکات و سکنات کی ایک ایک رپورٹ تم نے مجھے دینی ہے آ کے۔ تو انہوں نے وہ ایسے سوال کیے جو کہ صرف نبیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو خود بھی حضرت خدیجہ کو، کیونکہ یہ بھی
अपनी इंजील की और तौरा की, ये भी माशाल्लाह इनके पास काफी इल्म था उसका। और हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि वो जो वर्कवा बिन नौफल इनके कजन थे, उनके पास भी वो इसके तो आलम थे इन किताबों के। तो इनको खबर थी कि ये माशाल्लाह ऐसे हैं, तो इन्होंने ख्वाहिश यही की थी, अपने रब से ही मांगा था कि मेरे को इन्हीं की बीवी बनना है। तो इसका यहाँ से आप ये हिसाब लगाएं कि इनको पता था कि इन्होंने नबी की बीवी बन के इनको कोई फूलों की सेज नहीं मिलनी, कांटों बड़े रास्ते मिलने हैं, हर तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ना है, भूख प्यास, लोगों की बातें, ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ना है उनको, वो इनको पता था। आप लोग ये सोचिएगा। तो हुआ क्या? जी। हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेवकी के दौरान इनका जरिया माश क्या था? क्योंकि आपके वालिद मक्का के एक बड़े ताजिर थे, लेकिन इनकी औलाद नहीं थी। हजरत खदीजा तुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद का कारोबार संभाला और माले तजारत दूसरे मुल्कों को रवाना करने लगी। आपके वालिद जंग फुजार में मारे गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपना माल तिजारत किस तरह दूसरे मुल्कों को रवाना करती थीं? इनकी तजारत बड़ी वसी थी। वो बाअतमाद लोगों को मुस्ताजर बनाकर इनका हिस्सा मुकर्रर करके उन्हें तजारत के लिए भेजा करती थी। इनमें अमूमन इनके अजीज़ो अकारब भी होते थे। ये बाद अफराद को उन्होंने मुलाजिम भी रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर सबसे पहले किस मुल्क में गए थे? आपके साथ कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इनका माल लेकर शाम गए। इस सफर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। बताइए हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बेवकी का वक्त कैसे गुजारा करती थीं? इनकी तजारत शाम और यमन के मुल्कों तक थी, इसलिए उन्होंने वसी कारोबार को चलाने के लिए बड़ा अमला रखा हुआ था, जिसमें मुतअद्दिद अरब, यहूदी और ईसाई मुलाजम थे। हुस्न तदबीर और दयानतदारी की वजह से आपकी तजारत तरक्की पर थी। इसके साथ साथ आप ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारती और कुछ वक्त बैतुल्ला में, और इस वक्त की कहना औरतों के साथ हालात पर बहस भी करती। आपकी मक्का और इर्द गिर्द के हालात पर बड़ी गहरी नजर थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जब इन्होंने रिश्ता का पैगाम हजरत हदीजा ने भेजा था, तो उसकी ये सारी रीजन थी कि उनको इन चीजों का इल्म था। जी। जनाब अबू तालिब ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के माल तिजारत के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बकरियां चराते थे। एक मर्तबा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के माल तजारत की दीवानगी का वक्त आया, तो जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर मिलो, इनका माल तजारत शाम जाएगा। बेहतर हो ताकि तुम भी साथ जाते। मेरे पास रुपया नहीं, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए समाया मुहैया कर देता। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तिजारत बेचने के लिए क्या पैगाम भेजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शराफत और दयानत की वजह से अमीन के लक़ब से मशहूर थे, और आपके पाकीज़ा अखलाक का भी हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म था। जब हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जनाब अबू तालिब की गुफ्तगू की खबर मिली, तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, आप मेरा माल तजारत लेकर शाम जाएं। जो मुआवजा मैं औरों को देती हूँ, आपको इसका दुगना मुआवजा दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से कबूल फरमाया और इनका माल तजारत लेकर बसरा मतलब शाम तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर गए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को क्या फायदा हुआ?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजारती सफ़र 25 साल की उम्र में किया था। आपने बसरा शाम में सामान बेचा और फिर जो चाहा सामान खरीदा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के आम मुनाफे से भी दुगना मुनाफा कमाया। इस मर्तबा जितना नफा हुआ पहले कभी ना हुआ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदारपत के मुताबिक जितना नफा हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तय किया था उससे भी ज्यादा दिया। अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें कि उनकी देखें नीयत साफ थी हजरत खदीजा की। उन्होंने कहा कि मैं आपको जितना दूसरों को देती हूँ आपको मैं दुगना दूंगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से तजारत में भी दुगना से ज्यादा मुनाफा हुआ। मतलब आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए। जी। सफर शाम की वापसी पर हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या मंजर देखा और गुलाम मैसरा ने क्या बताया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से जब वापस आकर मक्के में दाखिल हो रहे थे तो दोपहर का वक्त था और फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। उन्होंने बाला खाने से ये मंजर देखा तो बाद दूसरी औरतों को भी दिखाया। गुलाम मैसरा ने भी बताया कि सफ़र के दौरान दोपहर की हिद्दत में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते थे। इस सफ़र के दौरान ईसाई राहब ने कहा था कि ये नबी होंगे। मैसरा ने इसका भी जिक्र किया। हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमाना की भी तारीफ की। तो मैंने आपको बताया था ना कि इनको इन चीजों का इल्म था हजरत खदीजा को। जी। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो मंजर देखे और सुने उनके बारे में वर्का बिन नौफल को बताया तो उन्होंने क्या कहा? सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये वाक़यात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से बयां किए तो उसने कहा, ए खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अगर ये वाक़यात सच्चे और सही हैं तो फिर यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं और मैं खूब जानता हूँ कि इस उम्मत में एक नबी आने वाले हैं जिनका हमको इंतज़ार है। उनका ज़माना करीब है। सुभान। बताइए हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब और किसके जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, हुस्न इखलाक, तजारती मुनाफे और पेश आने वाली वाक़यात से इनके दिल में हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का शौक पैदा हुआ। चुनांचे उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मनिया या मनिया भी कहते हैं के जरिए निकाह का पैगाम भिजवाया, जिसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरे के बाद कबूल कर लिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी शादी कराने के लिए किसको पैगाम दिया और निकाह में कौन लोग शरीक हुए? आपके वालिद तो हयात नहीं थे क्योंकि आप उनका बिजनेस रन कर रही थी। हयात नहीं थे तो रन कर रही थी ना। तो आपने चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा कि शादी करा दें। वो आ गए और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मुतलब को लेकर आए, जिनमें आपके चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब अबू तालिब भी शामिल थे। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से इनके चचा और चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल शामिल थे। हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ? जनाब अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तारीफ़ी कलमात कहे। खदीजा ताहरा रादी अल्लाह ताला अन्हा के चचा ने भी तारीफ़ी कलमात कहे और निकाह हुआ। ये भी रवायत है कि हज़रत खदीजा रादी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अमर बिन खुवैलद ने निकाह किया। बताइए हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हक़ महर क्या था? 12.5 ओकिया जो कि 500 तलाई दरम था, ज़रे महर मुकर्रर हुआ। और ये भी कहा गया है कि 20 जवान ऊंट महर में दिए गए जिन्हें ज़िबा करके लोगों को खिलाया गया। तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो से थे जब तजारत की तो फिर माशाल्लाह ये माल आया आपके पास। लेकिन इससे पहले जैसे हज़रत अबू तालिब के पास भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि तुम उनसे साथ जाके आ, तजारत कर लो।
तो बकरियां चराते थे। तो लेकिन ये कि जब उनके पास था तो उन्होंने देख लिया कि कितने ऊंट, जो से एक ऊंट की कीमत अगर आप लोगों को पता हो ना कि क्या है, तो आपको समझ आएगा कि 20 ऊंट कितनी मालियत के होते हैं, लाखों में होता है, लाखों दरम का होता है ऊंट जो सा है। बहुत वैल्यू है वहां पे ऊंट की और घोड़ों की। जी। शादी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ तो इस वक्त आपकी उम्र 40 साल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 45-48 साल भी बताई गई है, लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा करूँगी। हमें ये बताई गई है, लेकिन एक मिस्री हैं, आप कह लें स्पीकर कह लें, कि उनके पास लग मिस्री हैं, उनको अरबी की वो किताबें जिनके तर्जमे हम तक पहुंचते रहे, उनको तो अरबी आती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर हज़रत खदीजा की उम्र जो सी थी वो 40 साल की नहीं थी, वो इससे कम उम्र की थी। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह करे वो मुझे कहाँ से कहीं से उसका उनका रेफरेंस भी मिल जाए, जिनसे ये यूट्यूब पे मैंने देखा और सुना, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक बात हो जाएगी। अल्लाह करे हमें किसी तरह वो अरबी की किताब का पोर्शन कहीं से मिल जाए जो उन्होंने पढ़ा होगा, के पास किताबें थी। जो हम लोग तो सिर्फ ट्रांसलेशन भी पढ़े हैं ना, तो ये बात। जी। बताइए हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की तकरीब कब और कहाँ हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम के तजारती सफर से वापसी के 2 माह 25 दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम पर यह तकरीब हुई। शादी की खुशी का इजहार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों ने डफ बजाकर किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे की तकरीब कहाँ और कैसे मनाई गई? हज़रत अबू तालिब के घर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की तकरीब का एहतमाम किया, जिसके लिए बाज़ रवायात के मुताबिक 2 ऊँट ज़िबा किए गए। ये भी कहा गया है ये तकरीब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही के मकान पर हुई। क्या शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के माल के साथ कोई और तिजारती सफर भी किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तजारती माल लेकर कई तजारती सफ़र किए। अब ये माल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था। सैयदा खतीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कैसी बीवी साबित हुई? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक वफादार और गमगुसार बीवी थी, पूरी यकसोई और दिलजमी से खामन की खिदमत करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कहाँ तशरीफ ले जाते थे और कौन सी बीवी आपके साथ होती थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम माल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया, तो फ़िक्र मुआश से आज़ादी मिल गई। आप अपना ज़्यादा वक्त गार हिरा में इबादत करने में गुजारते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कभी कभी आपके साथ जाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खाना पानी साथ ले जाते और कई कई दिन वहाँ ठहरते। कभी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ खाना पहुँचाती थी। आप ये देखिए कि जहाँ पे गारे हिरा में जाया करते थे, ये कोई पास नहीं था, ये काफी दूर था, चल के जाना पड़ता था बस्ती से निकल के, लाइक इट वाज ऑन द माइल्स, सेवरल माइल्स। और फिर उसके बाद आपने पहाड़ पे चढ़ के जाना। आजकल तो वहाँ स्टेप्स बने हुए हैं ना, हालांकि स्टेप्स के ऊपर भी चढ़ के जाना जो है ना बहुत मुश्किल है। उस वक्त तो स्टेप्स भी नहीं हुआ करते थे, आप ये सोचिए। जी। इबादत इलाही में हजरत हतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी। बैसत नबी से पहले आप कौन सी इबादत करते थे? उस वक्त तक नमाजें पंजगाना फर्ज ना हुई थी, ना कि उस वक्त, बल्कि मदीने में आके नमाजें हुई हैं अब फर्ज ना। मदीने से तो पहले हुई नहीं है, मक्के में तो नमाज ही नहीं थी।
तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ा करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ नवाफिल में शिरकत किया करती थी। एक अरसे तक आपने खुफिया तौर पर नमाज पढ़ी। बताइए हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे कैसा रवैया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी जानो माल से की थी। वफात तक कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज पहुंचा हो। जब भी कभी ऐसा वाकया हुआ जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाहक होती, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमेशा आपको तसल्ली दी और ढारस बंधाई। बासत नबवी के बाद जब कुफार मक्का आपका मजाक उड़ाते, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरता, तो अक्सर औक़ात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको तसल्ली देकर आपका बोझ हल्का किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रवैया आपसे बेहद प्यार और मोहब्बत का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात में इनसे मशवरा लेते थे। वैसे तो नबी के वक्त हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 55 साल थी। पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ फरमा थे जब पहली वही सूरतुल अल्क की पहली 5 आयत नाज़िल हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत पढ़ा कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। अब ये याद रखिएगा वाकया कि आप कहाँ से पहाड़ से उतर के, वैली में से गुजर के और फिर आप घर पहुंचे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, कपड़ा ओढ़ा दो। तो हैबत कम हो गई उनकी। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तमाम वाकया कह सुनाया, फरमाया मुझको डर है। हजरत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या फरमाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हुए फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी करते हैं, मेहमानों की तवादो करते हैं, गरीबों कमज़ोरों की दस्तगीरी करते हैं, ईमानतदार हैं और मुसीबत के वक्त लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह ताला आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। और यही बात सूरह दोहा में हमारे नबी को काफ़ी आगे जाके यही बातें बताई गई जो हज़रत हदीजा ने इनको बताई थी कि देखें, अगर आपने अपने किरदार से किसी को भी मुतासर करना है, वो अपने किरदार के अमल से, आपका अमल मुतासर करेगा, आप मुतासर नहीं करोगे। तो वो कैसे? वो ये सारी खूबियाँ हर मुसलमान में होनी चाहिए इंशाअल्लाह। जी। पहली वही के बाद हजरत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। इसने क्या कहा। उन्होंने सारी बात सुनकर कहा कि गारे हिरा में बगल कीर होने वाला तो वो मुकद्दस पैगाम रेसा है। अब यहाँ पे ये बगल कीर क्यों कहा? क्योंकि जब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा, फिर उनको पकड़ के कहते हैं उन्होंने अपने साथ भींचा और फिर उनके आ, दिल को, सीने को खोला गया से मतलब ये कि आपके दिल में, क्योंकि कुरान जो सा है ना वो दिलों पे उतरा है, तो इसलिए तो जो वही लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, काश उस वक्त मेरी जिंदगी हो जब कौम आपको वतन से निकाल देगी। क्योंकि हज़रत मूसा के साथ भी यही हुआ था। जी। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या वाकई मेरी कौम मुझे अपने वतन से निकाल देगी। वर्का बिन नौफल ने क्या जवाब दिया। वो हैरान इसलिए हुए थे कि उन्होंने तो कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया, उनके तो हर कोई उनके ऊपर जान छिड़कता था। तो इस वजह से हैरान हुए कि वाकई। तो जब वर्का बिन नौफल ने कहा था कि हाँ, तारीख गवाह है कि आप जैसे जिम्मेदारी जिसको भी सौंपी गई है
उसकी कौम ने उसके साथ यही सलूक किया है। अगर मैं जिंदा रहा तो आप इस वक्त आपकी भरपूर मदद करूंगा। उन्होंने हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से भी यही कहा कि बेशक ये उस वक्त के उम्मत का नबी है, इसे कहो कि ये साबित कदम रहे। मतलब क्या, कि ये भी उनको सब्र की तलकीन करें, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार यही कहा आपको कि आप अपने विंग्स डाउन रखो, अपने सब लोगों के लिए अपनी अपने आप को झुकाओ, अपने आप को नीचे करो और सब्र करो। और जी। एक तरह से हजरत हतीजा को भी नसीहत कर रहे हैं कि जाहिर है अगर तो ये साबित कदम रहेंगी तो अ, अपने यानी हस्बैंड को भी इसी की तलकीन करेंगी ना, इससे कहो कि ये साबित कदम रहे। जी बिल्कुल। सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली और तस्दीक करने वाली खातून का नाम बताइए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहली खातून हैं, क्योंकि उन्हीं को जाके रिवील किया कि मेरे ऊपर ऐसे वही आई है, फरिश्ता आया, तभी तो वो वर्का बिन नौफल के पास लेके गई। तो सबसे पहले लाज़मी बात है, कहाँ से ये चीज़ें हमेशा शुरू होती हैं, आपके घर से शुरू होती हैं। जब आपके घर वाले वो चीज़ मानेंगे तो फिर बाहर वाले भी मानेंगे। तो जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जब कुरान सुना, आपकी रिसालत की तस्दीक भी की और आप पर ईमान ले आई। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये तस्दीक हम जो वर्ड यूज़ करें, ये जो वर्ड है ना, ये सिद्दीक सिद्दीक से निकला है। सिद्दीक सादिक से, और सादिक सदक और साद दाल और खौफ से। तो जब हम सादिक कहते हैं, सादिक को पता है सच बोलता है, लेकिन जब हम सिद्दीक कहते हैं, दाल के ऊपर शद डल जाती है, दाल को दो दफा बोलते हैं हम। तो सिद्दीक जो सा है वो दोस्त होता है। सिद्दीक जो सा होता है वो ऐसा होता है जो कि हर कदम सच्चाई की रास्ते पे ही सच बोलकर ही चलाता है, उसको सिद्दीक कहते हैं। तो इसलिए आपकी रिसालत की तस्दीक की गई, मतलब तस्दीक जो सा है वो उसका वो बन गया, फिर मुदारे बन गया। तो उसकी वजह से बताया गया कि ऐसी जिसकी की जाती है बात को अप्रूव, वो। जी। बताइए हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के बारे में बाज़ मौरख़ीन व मुफस्सिरीन क्या कहते हैं। मुहिब तबरी ने लिखा है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मक्का में मस्जिद हराम के बाद सबसे ज़्यादा अफजल जगह थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तवील अरसे तक मुकीम रहे और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाज़िल होती रही। इमामुल फासी ने रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि मक्के के घरों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर बड़ा ही मुबारक था, क्योंकि इस घर में सारे जहानों की खवातीन सरदार फातिमातुल ज़ोहरा और उनकी बहनें पैदा हुईं। और ये कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल भी इसी घर में हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में हमेशा रहे, यहाँ तक कि हिजरत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के सुलूक पर अफसरदा खातिर होते थे, तो हज़रत हदीजा कुबरा क्या फरमाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ार की बातों का सदमा लिए हुए घर तशरीफ लाते, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ किया करती थी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रंजीदा न हो, क्या कोई ऐसा रसूल आज तक आया है जिसका लोगों ने मजाक ना उड़ाया हो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक भी किया करती थी और मुशरिकीन के मामले को आपके सामने हल्का करके पेश करती थी। अब यहाँ से पता लगा कि कैसे उनको साबित कदम रखने के लिए वो पीछे कैसे एक चट्टान की तरह थी, वो बताती थी कि देखो पहले अंबिया के साथ भी यही काम हुआ है। अंबिया और नबी और रसूल में इंशाल्लाह फर्क पे हम बात करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि क्या फर्क होता है नबी में और रसूल में। जी। हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। वो हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, हिम्मत बंधाई और मदद करती रहीं। काफिरों के गुस्से
اور غم اور تکالیف پر کئی سال تک، جب تک وہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی رہیں۔ خاندان بنو ہاشم کو محصور کیا گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ یہ مشقت کتنا عرصہ برداشت کرنی پڑی؟ قریش مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بنو ہاشم اور بنو ابو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعب بنو ہاشم، شعب ابی طالب وہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہ یہ مشہور جگہ ہے، وہ پہاڑ کی کھو میں، وادی میں مسحور کر دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں تقریباً 2.5 سے 3 سال ہیں گزارے۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ بتائیے عام القذف کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عام الحزن، عربی میں عام کہتے ہیں سال کو، تو حزن کہتے ہیں جس میں انسان اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، حزن، جو کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ہم نے بہت سارا ہے نا، وَيَحْزَنُونَ، آپ کو یہ وَلَا يَحْزَنُونَ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو شعب بنو حاسم کے، اور یہ ابھی ہم نے جو اس کا نام پڑھا، شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں، کہ حساک کو ختم ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سلیقہ شعری اور امور خانہ داری کا ذکر کس طرح ملتا ہے؟ خطبہ سیرت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت کے علاوہ امور خانہ داری میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ گھر کا کام کرنا، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ 10 نبوی میں شعیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، اس سے کتنے عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا؟ شعب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہونے کے 6 ماہ یا کچھ دن بعد 11 رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ بتائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنی عمر میں وفات پائی اور کہاں دفن ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج معالجہ میں کوئی کسر نہ اٹھا کی، لیکن آپ 65 یا 64 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں۔ آپ کو مکہ کے قریب جنت المعلی حجوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ الحمدللہ میں گئی ہوں زیارت کے لیے ان کی قبر پہ۔ جی شیب کیا؟ بنو ہاشم شاب جی، شاب بنو ہاشم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھی کس طرح کھانا پہنچ جاتا تھا؟ آپ کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنی پھوپھی کو کھانا پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز غلہ نہ لے جانے نہ دوں گا، اور سب میں تم کو منسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے ابو بختری سامنے آ گیا۔ واقعہ معلوم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کھانے کا کچھ بھیج رہا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور وہ ابو بختری کو برا برا کہنے لگا۔ ابو بختری نے اون کی ہٹی اٹھا کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ بہت اچھا کیا تھا۔ بتائیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کس نے قبر میں اتارا؟ اس وقت کا نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو
قبر میں اتارا. یعنی پہلی نماز جنازہ حضرت خدیجہ کی پڑھائی گئی. نہیں نا، اچھا. آپ نے قبر میں ان کو خود اتارا تھا، نماز قبر میں. جنازہ کا اس وقت نہیں تھا. جی. اوکے. ٹھیک ہے. پہلی نماز جنازہ جو سی تھی نا وہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو سعد بن درارہ کی تھی، مدینے میں. صحیح. جی یہ مکہ میں ہے. ٹھیک ہے، جب نماز فرض ہوئی اس کے بعد ہی نماز جنازہ فرض ہوئی. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں اور رشتہ. میں آپ کی وہ اس بات پہ میں نے جی کہہ دیا، نہیں نہیں نہیں. آ, نماز جنازہ ان کی پہلے پڑھائی گئی تھی، ان کی اسعد بن درارہ کی، لیکن اس وقت بھی وہاں پہ ابھی نمازوں کا حکم نہیں ہوا کیونکہ شب معراج ہی نہیں ہوئی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ جو تھے نا سعد بن درارہ، ہوں. یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ جا کے نا وہاں پہ لوگوں کو پیغام دیتے تھے کہ آؤ ہم جمعے کی نماز پڑھنے لگے ہیں. جہاں پہ اس وقت مسجد نبوی قائم ہے نا، اس ہوں. میدان میں ہوں. وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تو نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے یہ. ٹھیک ہے. ہوں. جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی. یہ پہلے کی ساری چیزیں پہلے ان میں تھی، عیسائیوں میں، اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے تھے. تو یہ ان میں سے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کو اس چیز کی تلاش تھی، حق کی تلاش تھی. جب ہمارے نبی علیہ السلام خیمہ با خیمہ جا رہے تھے، جب حج کے لیے لوگ آتے تھے وہاں پہ، ہوں. تو پھر یہ ان کے پاس گئے تھے. تو یہ وہی جو پہلا وفد ہے نا جنہوں نے آ, کی بیعت کی تھی، تو یہ وہی وفد ہے. یہ مدینے آنے سے پہلے یہ کام وہاں پہ کیا کرتے تھے حضرت سعد بن درارہ. یعنی کہ اس وقت بھی نماز قائم جی کرنے کی کوشش کرتے تھے ہاں باجماعت. جی ہاں جی. تو اللہ یہ نے. تو اب انشاءاللہ ہم سیرہ میں اور زیادہ گوتے کچھ لگائیں گے تو یہ باتیں پھر سامنے آئیں گی نا. جی آپ سوال کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح خیال فرمایا کرتے تھے؟ وفات کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ